Hello friends, welcome to Bindu Dadwal Chemistry Lessons. Our topic for today is hybridization. It is the concept that has been introduced to explain the characteristic geometrical shapes of polyatomic molecules. In the ground state, carbon atom has the configuration 1s2, 2s2, 2p2. So there are only two half-filled orbitals in this atom, but in methane, carbon is showing 4 bonds. So its bonding capacity should be 4. To make available 4 half-filled orbitals, 1 electron from S to S is promoted to the vacant 2pz so as to get 4 half-filled orbitals. Now the energy of 2s and 2p is not same, neither the shape is same, but in methane molecule all the 4 bonds are of equivalent shape and energy. To explain the equivalent character of the bonds, a new concept known as hybridization was introduced. It is defined as the process of intermixing of the orbital of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shapes. इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि एक लड्डू जिसकी एनर्जी जिसका शेप छोटा है, 3 लड्डू जो बड़े शेप के हैं, अगर आपने बच्चों में बांटने हो तो लड़ाई हो जाएगी. तो क्या किया जाएगा? सभी लड्डुओं को चूरा बनाया जाएगा और जो 4 नए लड्डू बनाए जाएंगे उनका साइज एक जैसा रखा जाएगा ताकि लड़ाई ना हो. तो जब ऐसा होता है तो जो ऑर्बिटल्स नए बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं. इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. अब जैसे इस केस में 1s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं तो जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे और जो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, number of hybridized orbitals formed is equal to the number of orbitals that get hybridized. जितने orbital mix हुए थे उतने ही नए बनेंगे. The hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. जो नए orbitals बनते हैं उनकी energy भी same होती है और shape भी जैसा होता है. The hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals. The hybrid orbitals are directed in space in some preferred directions to have a stable arrangement. The type of hybridization indicates the geometry of molecule. तो orbitals जो हैं स्पेस में इस तरह से डायरेक्ट होते हैं ताकि वो स्टेबल अरेंजमेंट बनाए, उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो. Conditions for hybridization. Only the orbitals present in the valence shell of the atom are hybridized. The orbitals undergoing hybridization should have only a small difference in energy. The orbitals which differ largely in energy cannot participate in hybridization. Promotion is not an essential condition prior to hybridization. It is not essential that only half-filled orbitals participate in hybridization. In certain cases, even filled orbitals of valence shell participate in hybridization. Types of hybridization. This type of hybridization involves mixing of 1s and 1p orbital, resulting in formation of 2 equivalent sp hybrid orbitals, s and pz. Each sp hybrid orbital has 50% s character. Such a molecule in which central atom is sp hybridized and is linked directly to other central atoms possesses a linear geometry. ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज करते हैं ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, तो इसलिए ज्योमेट्री लीनियर आती है. The 2 sp hybrid orbitals point in opposite direction along the z-axis with projecting positive lobes and very small negative lobes, which provides more effective overlapping, resulting in the formation of strong bond. ये एक s और एक p कंबाइन करके जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं उसका पॉजिटिव लोब बड़ा होता है और नेगेटिव लोब छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 में बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है. इसकी ग्राउंड स्टेट
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखिए, एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 1s2 2s2। अब ग्राउंड स्टेट में तो ये फुली फिल्ड है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वेकेंट p में चला जाता है। इस तरह से 2 ऑर्बिटल्स आते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। ये s और ये p आपस में इंटरमिक्स और रीडिस्ट्रीब्यूट करके एनर्जी यानी कि हाइब्रिडाइज करके sp हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करके 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी होते हैं और जो है दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 2 कॉर्नर्स ऑफ अ एक्सिस। इट इज वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव लोब एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का है बेरिलियम का, वो क्लोरीन के पॉजिटिव लोब के साथ ओवरलैप करता है एक्सियली हेड ऑन और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसी तरह दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन के पॉजिटिव लोब से पॉजिटिव और पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से इनके बीच का बॉन्ड एंगल Cl बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में एक s, 1s and 2p ऑर्बिटल्स दे विल इन्वॉल्व and redistribute their energy to form 3 equivalent sp2 hybrid orbitals। अब एक s है और 2 p हैं और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक प्लेन के एक ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्ट होते हैं। इस तरह इनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और ये प्लेनर होता है। इस तरह की शेप को ट्राइगोनल प्लेनर कहा जाता है। अब ये जो 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें क्योंकि 3 में से एक s है तो s कैरेक्टर 33% है और p कैरेक्टर 67% है। जो ये तीनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोरॉन के हैं ये 3 क्लोरीन एटम्स के पॉजिटिव चार्ज लोब के साथ एक्सियली या एंड टू एंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्रीज होता है। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसमें एक s और 3 p जो हैं वो हाइब्रिडाइज करते हैं। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल इन विच देयर इज मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p orbitals of the valence shell to form 4 sp3 hybrid orbitals of equal energy and shape। सो 4 में से एक s है तो 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ये रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक टेट्राहेड्रॉन की 4 कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ऊपर और 3 नीचे की तरफ इस तरह से कि इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स हो या 109.5 डिग्री हो। तो ये क्योंकि ये चारों एक टेट्राहेड्रॉन की 4 कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्टेड है तो इस तरह की शेप को टेट्राहेड्रल शेप कहा जाता है। अब ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये हाइड्रोजन के 1s के साथ एंड टू एंड ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं और इस तरह से ये टेट्राहेड्रल शेप का मीथेन मॉलिक्यूल बनता है। अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है लेकिन जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसमें से एक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बाकी का जो शेप है वो पिरामिड जैसा हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि अमोनिया पिरामिडल है। इस केस में लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल 109 से छोटा होके 107 तक रिड्यूस हो जाता है। तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है। अब वाटर में ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करता है और उसके भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं लेकिन 2 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके बीच की रिपल्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि ये बॉन्ड पेयर की को एक दूसरे की तरफ और पास कर देती है और बॉन्ड एंगल और कम होके 104.5 डिग्री रह जाता है और इस तरह से वाटर का शेप बेंट या शेप हो जाता है। There are some other examples also in which there is sp3, sp2 और sp hybridization. So let us take the example of ethane molecule. ईथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं, दोनों ही जो हैं
वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करते हैं। इस तरह से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होते हैं। इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है, जबकि बाकी sp3 हाइब्रिड हाइड्रोजन के 1s के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 109 पिकोमीटर। एग्जाम्पल लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन ईथीन। ईथीन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। 2 कार्बन एटम्स हैं, दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करते हैं और इस तरह से जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ये एक प्लेन में एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल में ट्रायंगल प्लेनर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हर कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी के 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस कार्बन में दूसरा p है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो px है। तो एक कार्बन का px दूसरे कार्बन के px के साथ लेटरली या साइड वेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट इज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द ईथीन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये जो ईथेन है इसमें 2 कार्बन्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इट इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो द एक्सिस ऑफ द कार्बन, 2 कार्बन एटम्स जो ज्वाइन हो रहे हैं। और इस कार्बन में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है। तो इस तरह से ओवरऑल जो है ईथीन में आपके पास 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स और एक पाई बॉन्ड होता है। इनके बीच में ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा होता है 117.6 और ये 120 से थोड़ा सा बड़ा 121 है और इनके बीच में पाई बॉन्ड है। ये बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो छोटा होके 154 सिंगल बॉन्ड में था, लेकिन डबल बॉन्ड में छोटा हो गया 134 हो गया है। और इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ भी 109 से छोटी होके 108 हो गई है। जब एल्केन्स थे उसमें 109 थी, यहाँ एल्कीन्स में 108 पिकोमीटर हो गई है। दिस इज sp2 hybridization in ethene molecule. Next is sp hybridization in ethyne. तो C2H2 इसका फॉर्मूला है और दोनों कार्बन एटम्स sp हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करते हैं और इस तरह से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये इसमें से इस कार्बन का sp और इस कार्बन के sp के 2 ऑर्बिटल्स में से एक आपस में ओवरलैप करके sp सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि दूसरा जो है वो हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड। साथ ही साथ इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड px और py ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हैं। px के साथ और py के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के बीच में। ये हम ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं, ये एक कार्बन और एक कार्बन में ये ब्लू कलर का सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं और इसके साथ जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और इसी तरह इस कार्बन का भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। Hybridization which involves d orbitals. So elements present in the third period. जब थर्ड पीरियड वाली एलिमेंट्स आती हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s to 3p होती है, वहां पे 3d भी प्रेजेंट होता है। तो जब s और p के साथ d भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमिक्सिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन में, तब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इस तरीके से dsp2 हो सकती है। तब शेप स्क्वायर प्लेनर आता है जिसमें एक d, एक s और 2 p होते हैं। एग्जाम्पल्स आर टेट्रासियानो निकलेट एंड टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट। इसी तरह अगर एक s
3p और 1d है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, और इस केस की एग्जांपल है PF5 और PCL5। अगर 1s 3p और 2d है, वो इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो और जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसमें से एक पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब जो ज्योमेट्री है उसको स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। एग्जाम्पल है BRF5। और अगर सारे ही बॉन्ड पेयर्स हैं तब उस तरह की ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इस केस में d ऑर्बिटल बाहर वाला भी हो सकता है, तब हाइब्रिडाइजेशन को sp3d2 कहते हैं, और अंदर वाला जैसे 3d 4s और 4p है तब इसको d2sp3 कहते हैं। दोनों ही केसेस में ऑक्टाहेड्रल जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं। sp3d2 की एग्जांपल है SF6 एंड CrF6 3 नेगेटिव, जबकि d2sp3 की एग्जांपल है हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आयन। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल, जिस केस में PCl5 मॉलिक्यूल में जो फास्फोरस एटम है उसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 एंड 3p3 और 3d वेकेंट होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में s का एक इलेक्ट्रॉन 3s से जंप करके प्रमोट होकर 3d में आ जाता है, और इस तरह से 5 हाफ फिल्ड आपके पास ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ये 1s 3p और 1d ये आपस में इंटरमिक्स करके और रीडिस्ट्रीब्यूट करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इन 5 sp3d ऑर्बिटल्स में 5 क्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इनके साथ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं और इस तरह से PCl5 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये जो 5 sp3d ऑर्बिटल्स होते हैं ये मिनिमम रिपल्शन करने के लिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री एक्वायर करते हैं, जिसमें 3 PCl बॉन्ड्स एक प्लेन में ट्राइंगल में होते हैं और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है। ये सारे इक्वलेंट नहीं होते हैं। जो एक प्लेन के बॉन्ड्स होते हैं उनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं, और जो अबव एंड बिलो है उनको हम एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। इनके बीच के बॉन्ड एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ प्लेन वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के में क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल 120 है, जबकि एक्सियल वाला जो है वो इस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला बॉन्ड जो है इन इक्वेटोरियल बॉन्ड से इतनी ज्यादा रिपल्शन फेस करता है कि ये बॉन्ड इनसे लंबा हो जाता है और आसानी से टूट भी जाता है, इसलिए PCl5 काफी रिएक्टिव होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल जिसमें कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ SF6 जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p4 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके d में आ जाते हैं और फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और 6f एटम्स के साथ पेयरिंग करते हैं ताकि एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आए। इसमें सभी बॉन्ड्स एक जैसे होते हैं और सभी बॉन्ड एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।